morning, sir. Yeah, please mute yourself. So, जी सर. yeah. Assalam, sir. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Please mute yourself. So myself, Sajid Jamal, I'm a professor in the Department of Education, Aligarh Muslim University, Aligarh. Since the last 25 years, I have been in this teaching profession, in fact. So my specialty areas are assessment, evaluation, teaching, learning, and research. So this is a subject refresher course in teacher education. I can see so many familiar faces. They have joined. Dr. Abrar, my own student from Jamia Millia Islamia, my own colleague from Manu, Dr. Nehal Ahmed Ansari, and so many other people. Pritam sir ko dekh pa raha hoon, Raghuraj sir, so many people. So since all of you are very experienced, सर आप आवाज नहीं आ रही है सर. You are not audible, sir. You are not audible, sir. Please. You are not audible, sir. now am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. You are audible. Sir, yes. Okay. So in fact, it's raining in Aligarh, so network is not stable. So I have connected myself through two networks. I'm quite sure now things will be better. So the topic that has been given to me is extended learning opportunities. So nowadays they are talking a lot about it, and if you see the National Education Policy 2020 documents, it also mentions like that. So we all are teacher educators. So what should be our role in providing extended learning opportunities? That is those opportunities which are beyond the classroom. So definitely as a teacher, we teach in the classroom, we groom the students, we guide them, we counsel them. I mean, so many things we do. But what we can do beyond the classroom, I mean, what the opportunities we can provide them to beyond the classroom, and that comes under the category of extended learning opportunities. So before I proceed, I wanted to take your opinion on this trivial and very important issue. आपको क्या लगता है कि extended learning opportunities को हम provide कर सकते हैं या हमको provide करना चाहिए, या do you think teacher is the only source of knowledge in this information age? So what's your opinion? करना चाहिए. My friends, got my question? My friends? Yes, sir. Yes, sir. करना चाहिए, sir. करना चाहिए. There are opportunities, of course, opportunities beyond the classroom. And the most traditional or the best had been the group discussion among the friends, among the colleagues. Okay. And Okay. Azman sahab, Sir, aap kya padhate hain? sir. What do you teach, sir? sir, I teach history actually. Where? I'm also an ex-AMU student. So, Assalamu alaikum. And Okay. I think I found the interaction with the students, with the friends, as the best learning or experience for me. Okay. Parveen ma'am, you have raised your hand. So please say if you want to say Yes, something. good morning, sir. Yeah. सर एक्चुअली मुझे लगता है कि टीचर नॉलेज देने का एक पार्ट है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट, फैमिली सबसे लर्निंग करना चाहिए. और टीचर के लिए डिस्कशन मेथड या फिर उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देना, सही वे बताना, ये हो सकता है सर. ये मेरी राय है सर. Okay. Parveen ma'am, what do you teach? मैं सर बंगाली पढ़ाती हूँ वेस्ट बंगाल में. मेरे कॉलेज का नाम है सोनामुखी कॉलेज, बांकुड़ा में है, बांकुड़ा जिला में है. Oh, so your name is Irene Yes, Parveen. Irene Parveen, sir. Oh, okay. Thank you, ma'am. Thank you.
और किसी का कुछ कहना है? आप लोग फ्री है? यस अब्रार, यस अब्रार। Sir, जी तो I ज्ञान think कहीं से I think that कंटिन्यू। there are many sources, including teacher, and teacher there may play a role of guide and counselor. ओके ओके, जी एनी अदर ओपिनियन? For रघुराज holistic सर? development. जी For holistic मैं ये कह रहा development. सर ज्ञान needs- कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। जी 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 जी, ओके ओके ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ज्ञान जाहिर सी बात है कि कहीं से भी मिले उसको लेना चाहिए, लेने में कोई हिचक भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको भी हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। सो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड द क्लासरूम टू लर्न, लेकिन उनको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो माय होल लेक्चर विल बी फोकस्ड ऑन दैट। सो फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग what we understand by extended learning opportunities, and then we will be moving ahead and we'll be talking about the sources and how to plan for this extended learning opportunities. So I'm going to share my screen first. So I'm just sharing, please wait, and then we will proceed. So I'm sharing my screen. आपको दिख रही है मेरी स्लाइड्स? Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है। यस यस, तो इस स्लाइड को देखिए एक नजर, और इस पे एक लाइन नीचे लिखी हुई है, इन दैट आई हैव डिफाइंड व्हाट आर एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? हाँ My सर। friends, G. Yes, sir. Yes, sir. So on the basis of that, I mean the line that has been written on the slide, we can say that extended learning opportunities, as in the beginning I mentioned, offer alternative pathways to acquire knowledge and skills beyond the traditional classroom settings. I mean, beyond the classroom, what we can do for our students to acquire, number one, knowledge, and number two, skills. Now, at this juncture of time, I would like to take your opinion. What is more important, knowledge or skill, or both? Sir, both. बहुत अच्छा, चलिए नॉलेज और स्किल दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक ही सिक्का के दो पहलू है। यानी अच्छा, चलिए मैं एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, नॉलेज। सो डू यू थिंक imparting knowledge is important, acquiring knowledge is important? Of course you will agree with me, there is no doubt about it, है ना? इस बात से तो सहमत हैं सभी लोग मुझसे? Yes, sir. Yes, sir. Right. But if you see your traditional curriculum, whether it is school level, whether it is college level or any level, it is heavily bookish. तो सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा होता है वो इनफैक्ट यानी सोल फोकस इज ऑन एक्वायरिंग द नॉलेज। तो हमने स्किल्स को नेग्लेक्ट किया काफी दिनों तक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स, तो आई थिंक नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, स्किल इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट। And if we are providing some opportunities beyond the classroom, that come under the category of extended learning opportunities. Coming to the next slide, what are the characteristics of extended learning opportunities? So in a nutshell, I mean, there might be so many, but I have just summarized 12 characteristics. So I would like to request any one of you to please read my slide. Please read my slide loudly. ओके, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए मैम। Individualized learning, practical experience, community engagement, students' autonomy, competency-based evaluation, developing transferable skills, multiple formats, career preparation, mentorship, critical thinking or problem solving, reflective practice, encourage lifelong learning. Thank you. Thank you. Thank you. So let's talk about all these characteristics one by one. So in a nutshell, what I want to say,
definitely these extended learning opportunities will be different from the traditional classroom opportunities that we provide to the students. And how they will differ? On these 12 points we can check. So individualized learning. So what's your understanding of individualized learning? What do you understand by individualized learning? सर, हर व्यक्ति की योग्यताएं, क्षमताएं अलग अलग होती हैं, उनके जी। सीखने की गति भी अलग होती है, इसलिए हमें जो सिखाने के तौर तरीके हैं वो उन बच्चों को ध्यान रख के कर दो। इसमें बच्चा अपने आप से अपनी योग्यता क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी गति के अकॉर्डिंग सीखता है, अपनी जी। रुचि के अकॉर्डिंग। जी जी, आप कौन साहब हैं सर? Who are you sir? सर विनीत सिंह। विनीत सर, क्या पढ़ाते हैं आप सर? सर एजुकेशन पढ़ाते हैं सर। अरे वेरी गुड, वेयर सर? सर पीसी बागला कॉलेज, हाथरस। अच्छा, हाथरस से, वेरी गुड विनीत सर, राइट। और कोई कुछ कहेगा इसके बारे में, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के बारे में? Okay, I'm changing the question. Do you think that in our Indian traditional conditions, individualized learning is possible in the classroom? आपको लगता है कर पाएंगे आप सही से? जी नहीं सर। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। I have seen the classes. I myself has the experience. You know, there are 200, even 250 students in one classroom. The whole classroom is jam packed. Lecture theater is jam packed. तो अब इतनी बड़ी क्लास को, particularly undergraduate classes वगैरह में जो स्ट्रेंथ है, तो I mean it's very difficult to ensure individualized learning. But this is the beauty of extended learning opportunities, that whenever we will provide the opportunity, हम इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए, उसके रिसोर्सेज को देखते हुए, उसके अंदर की क्षमताओं को देखते हुए accordingly we give the opportunity. तो एक इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि it becomes individualized. And then characteristic number 2, if you see multiple formats, there are so many formats. वो formats कौन से हैं या वो sources कौन से हैं, अभी हम next slide पे आते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। Number 3, practical experience. In the beginning I said कि our whole education system is heavily bookish, और ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस होता है नॉलेज को इम्पार्ट करने का। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वी डोंट प्रोवाइड, एंड आई थिंक दिस might be supplemented through extended learning opportunities. We might prepare the students for their career, choosing their career, and I mean shaping their career. Community engagement. So what does it mean? Community engagement से आप क्या समझते हैं? सर हम जो विद्यार्थी तैयार करते हैं वो समाज के लिए तैयार करते हैं। डीवी ने कहा भी था कि जो विद्यालय होता है समाज का अलग रूप होता है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारी शिक्षा है वो समाज से दूर जा रही है। समाज के लिए जो योग्यताएं चाहिए या जो मूल्य चाहिए वो शायद हम अपने विद्यार्थी के अंदर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी एंगेजमेंट में बच्चा उनके बीच में जाता है और जो भी सामाजिक गुण हैं, दया, क्षमा, स्नेह, सहयोग, पर ऐसे अनेक गुण उनके बीच में जाकर सीखता है और अपने स्किल्स उन्हीं के बीच में जाकर के प्रयोग करता है। सर okay. अच्छा, do you agree that there are so many people, competent people in the community who can serve as a better resource person, or they have the potential to teach our students a lot? आपको लगता है सर? Yes, sir. नहीं सर। Definitely. Now let me give you one example of our own university, Aligarh Muslim University. Definitely we have polytechnics and we have so many BVO courses, और स्किल के हिसाब से हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब हम सपोज स्टूडेंट्स को ताला बनाना सिखा रहे हैं, तो हम जो स्टूडेंट्स को ताला बनाना सिखाते हैं, तो हम जो किताब में पढ़े थे, आई मीन 20 years बैक या 10 years बैक, तो जो टेक्नोलॉजी थी, जो तरीके थे, वही पढ़े हैं और बुकिश नॉलेज हम वही अपने स्टूडेंट्स को देंगे। But a person, because Aligarh is known for its lock and its lock industry, and there are so many competent people, उनके पास इतना ज्ञान है, यानी डिग्री भले ना हो लेकिन ज्ञान बहुत है। I mean वो ऐसी सी बातें बता सकते हैं जो शायद we as a professor don't know. So अगर हम ऐसा करें कि हम अपने स्टूडेंट्स को उनके पास लेकर के जाएं, या किसी दिन संडे वगैरह को जब वो छुट्टी पे रहते हैं, फैक्ट्री बंद रहती है, उनको किसी एक दिन बुला करके यहाँ पर हम उनको अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन करवाएं कि भाई आप बताओ कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बुकिश नॉलेज वी कैन इम्पार्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो स्किल्स सही मायनों में, मतलब जब तक कि कम्युनिटी को हम एंगेज नहीं करेंगे, परहैप्स वी विल नॉट बी एबल टू
inculcate the skills. और आज के दौर में skills को inculcate करना बहुत important है, and that's why this community engagement is very important. So I have given just one example. Similarly, I mean, people who are engaged in leather industries, people who are engaged in textile industries, people who are engaged in construction industries, तो उनके पास बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स और वो सारी चीजें होती हैं जिनका ज्ञान शायद जो बुकिश नॉलेज देने वाले प्रोफेसर्स हैं उनके पास ना हो. तो आई थिंक बाय दैट वे इफ यू एंगेज द कम्युनिटी तो थिंग्स विल बी बेटर. अब उसके बाद बात आती है मेंटरशिप की. आई डोंट हैव टू से मच. आई मीन मेंटरशिप हैज बीन ए वेरी ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन. अगर आप वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन से स्टडी करें तो आप पाएंगे कि वक्फे से, आई मीन एज वी हैव मूव्ड टू बुद्धिस्ट पीरियड, टू मेडिवल पीरियड, इवन टू मॉडर्न पीरियड, तो मेंटरशिप का की एक ट्रेडिशन हमारी बहुत पुरानी रही है. बट अनफॉर्चुनेटली during this century or you can say the last century, तो ये एक ट्रेडिशन ब्रेक हो रही है. आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो उसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है. सो सेलेक्टिंग 2 or 3 स्टूडेंट्स या और इवन 1 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट्स और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और 1 सिंगल स्टूडेंट, उसको ग्रूम करें, उसके करियर को शेप करें, उसकी काउंसलिंग करें, समथिंग लाइक दैट. तो दिस मे बी प्रोवाइडेड थ्रू एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. सो देयर इज वन पर्सन वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट और या एक अपना रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाह रहा है. अब जाहिर सी बात है कि आई एम ए टीचर एजुकेटर, सो आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दैट. तो क्या मैं किसी ऐसे पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट इंसान को रिकमेंड कर सकता हूँ, उसको भेज सकता हूँ जो वहां पर उसको बता सके, उसको ज्ञान दे सके या उसकी परेशानियों को दूर कर सके, समथिंग लाइक दैट. तो ये मेंटरशिप जो है वो एक खास कैरेक्टरिस्टिक है एक्सटेंडेड लर्निंग. स्टूडेंट ऑटोनॉमी डेफिनेटली, आई मीन जितना ज्यादा हम फॉर्मल क्लासरूम पर डिपेंड होंगे उतना ही हम स्टूडेंट्स के ऊपर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, उसको जो है यानी पूरे सिचुएशन को मोनोटोनस बनाएंगे. और जितना हम उसको फ्रीडम देंगे, जाहिर सी बात है कि आई मीन टू चूज द सोर्सेज, टू गो टू द पीपल, टू लर्न एट हिज और हर ओन पेस, उसमें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी. इट विल लीड टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. We can do competency based evaluation as well. There might be some reflective practices. जो skills transfer हो सकते हैं उनको डेवलप करना, and encouraging lifelong learning. I mean these are the important characteristics of extended. अब जो बात आती है कि कितने तरह के जो है वो माइक ऑन है शोएब जी. किसी का माइक खुला हुआ, प्लीज बंद कर लीजिए. शोएब जी आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए. राइट. सो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. तो 3 इस स्लाइड पे मेंशन है और 3 अगली स्लाइड पे मेंशन है. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, एनी वन ऑफ यू, टू प्लीज रीड दिस स्लाइड. एनी वन ऑफ यू? Yeah, please. Types of extended learning and apprenticeship of practical work experience with structured learning under the skilled mentor. It allows learners to acquire and knowledge through hands-on application in a real-world setting. Right. सर बाकी की 2 भी पढ़ लो. हाँ पढ़ लीजिए. Okay, thank you. Independent study allows learners to pursue individual interests and areas of study at their own pace, utilizing self-directed learning strategies and resources. It promotes self-reliance and personal growth in an individual setting. आगे बढ़िए. थर्ड वन. हाँ सर. Internship provides hands-on experience in a specific industry, allowing learners to apply their academic knowledge to real-world projects and professional connections. It offers valuable practical experience and career exploration. Right. Thank you, ma'am. Thank you. So let's first discuss these 3 types of extended learning opportunities. जिसमें कि अभी just now ma'am has read about apprenticeship. Second one is independent study, and third one is internship.
तो अप्रेंटिसशिप से आप क्या समझते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है अप्रेंटिसशिप के बारे में? अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जो हमने सैद्धांतिक ज्ञान लिया है उसे हम व्यवहारिक परिस्थितियों में जाकर के प्रयोग करें और वहां पर जाके सीखें। ओके ओके, और कोई कुछ कहेगा? और कोई कुछ कहेगा इसके बारे में? जैसे कि क्लास में जो सीखा है, क्लास में थ्योरेटिकल हमने सीखा है, वो प्रैक्टिकल कहीं जाकर भी सीखना। लाइक नर्सिंग ट्रेनिंग में हम लैब में जाकर भी सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऐसे फिर क्लास में हम थ्योरी सीखेंगे, कैसे मानिए ब्लड टेस्ट कैसे करना है, तो वो लैब में जाकर ही हम सीख सकते हैं, क्लास में तो नहीं सिखाएंगे। ओके ओके शंपा मैम, थैंक यू वेरी मच। व्हाट डू यू टीच मैम? मेरा सब्जेक्ट है बंगाली। मैं मुर्शिदाबाद के कॉलेज है पांचतुपी गांव में है, वहां मैं बंगाली पढ़ाती हूँ। मेरा सब्जेक्ट बंगाली है। वेरी गुड शंपा मैम, थैंक यू। एनी अदर ओपिनियन? आई एम आस्किंग अबाउट अप्रेंटिसशिप। सर दूसरे रूप में कह सकते हैं अनुभव या प्रयोग द्वारा सीखना, कि मतलब स्वयं उन वास्तविक परिस्थितियों में अपने अनुभव द्वारा सीखना या वहाँ परिस्थितियों में अपने आप प्रयोग करके सीखना। ओके ओके, ये आप लोगों ने, आई एम क्वाइट श्योर यू पीपल, यू ऑल आर टीचर्स, सो यू पीपल हैव हर्ड अबाउट इट, कि ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं या एमबीए के स्टूडेंट होते हैं या अप टू सम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, ये इन सबको कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह में भेजा जाता है कुछ दिनों के लिए। हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस सर। क्या पर्पस होता है इसका? क्या पर्पस होता है इसका बताइए? टू टेक प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, much theoretical knowledge has been imparted in the classroom by the professors, learned professors of course, लेकिन अब उसको रियल लाइफ, यानी वो थियोरेटिकली तो सारी चीजें समझ गए, मशीन ऐसे ऑन होगी और ऐसे काम करेगी, मशीन आना फिर चलते चलते रुक जाए तो फिर क्या करेंगे, आई मीन हाउ टू कट द पीसेस, हाउ टू डू द वेल्डिंग, आई मीन ऑल दीज थिंग्स वो सब बता दिया उनको थियरी। क्या आपको लगता है कि सारी चीजें थियरी सीखने से थी? जी जी शबाना मैम, जैसे सर्जरी अगर सिखाया भी जाए तो भी प्रैक्टिकली उसको सामने करके देखना होता है, वो देखना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जैसे इंटर्नशिप डॉक्टर लोग करते हैं। राइट। शबाना मैम आप कुछ कह रही है? सर यही बोल रही थी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए और प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल से कंप्लीट करना। एक दूसरे के साथ काम करने का या फिर एक ग्रुप में काम करने का एक्सपीरियंस भी तो जरूरी है ना, जरूरी है। और अनुभवी लोगों के अंडर काम करना, यानी नॉट द यंग पीपल ओनली, आई मीन इनएक्सपीरियंस पीपल, बल्कि वो तो ग्रुप में तो काम करेंगे, लेकिन किसी एक अनुभवी इंसान के अंदर में काम करेंगे, सो दैट इफ दे हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन दैट माइट बी रिमूव्ड। और पर्टिकुलरली जितने भी स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं उसमें अप्रेंटिसशिप इज समहाउ very important. तो apprenticeship is one of the types of extended learning opportunities. दूसरा जो अभी मैम ने पढ़ा था मेरी स्लाइड को देख करके, तो that is self study. अब आपको लगता है कि self study is important? What's your opinion? Yes sir, it is very much important. बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर हम जो देखते हैं, सुनते हैं हमारे टीचर्स से या फिर और कहीं से जो ज्ञान लेते हैं, तो हमारा स्किल बढ़ाने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत अहमियत रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लगता है सर। जी सर, अभी इतना प्रेशर है ना सिलेबस के, तो सेल्फ स्टडी के टाइम ही नहीं है। सेल्फ स्टडी होगा तो हमें लगता है कि शायद और भी नॉलेज बढ़ेगा या फिर स्टूडेंट लोगों का और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके। सेल्फ स्टडी ये प्रूव करती है कि आप ज्ञान को सीखने के लिए मोटिवेट हैं, आप उसके लिए तत्पर हैं, और सेल्फ स्टडी में हम ज्ञान क्लास में प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को ये जानने के लिए कि सही है कि नहीं है, और अपना ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, उसमें कुछ इनरिच करने के लिए भी हम सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना अनुपम, ठीक है विनीत सर, अनुपम सर कुछ कह रहे थे आप? मेरा भी ये कहना है सर कि अनुभव तो होना, अनुभवी लोगों के साथ तो ये करना ही चाहिए स्टडी, उनके ग्रुप के अंदर में होकर, मगर सेल्फ स्टडी से क्या होता है कि आदमी का अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लर्निंग स्किल बढ़ता है,
इसलिए सेल्फ स्टडी आपको पढ़ाने के लिए करना पूरी लाइफ जरूरत है। तो पूरी जीवन। सर ठीक है। अनुपम सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ सर। कहाँ पर सर? मैं बिहार से हूँ। आरडीएस कॉलेज में, बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, पीजी कॉलेज है, उसमें हिस्ट्री का टीचर। ठीक अनुपम सर। हाँ डिम्पल मैम आप कुछ कह रही थी? हाँ सर, ये कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है। अच्छा मैम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट व्हाट अबाउट वुमेन मैम? दे आर ऑलरेडी परफेक्ट? नो सर स्टडी इज इंपॉर्टेंट होता है सर। ओके अब यहाँ पर एक आपके सामने एक केस स्टडी में रखता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू कन्वे। एक बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे वो, एजुकेशन में रिटायर हो गए। आप लोग जानते हैं उनको? किसी पढ़े लिखे प्रोफेसर को जानते हैं आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के? विनीत सर, अनुपम सर? जी सर, वशिष्ठ सर। वेरी गुड। नहीं सर, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है अभी। वशिष्ठ सर प्रोफेसर वशिष्ठ। हाँ he delivered lecture in this platform also the previous day। आए होंगे, इसी वजह से मैंने उनका नाम लिया था। तो बड़े ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं, और चंद एक लोग जिनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, उसमें से एक वशिष्ठ सर भी हैं। इनफैक्ट इज वेरी लर्नेड प्रोफेसर। सो व्हेन ही वाज द हेड एंड डीन ऑफ एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने एमएड लेवल के स्टूडेंट का 2 ग्रुप बनाया। तो एक ग्रुप को द फॉर्मल वे, आई मीन टाइम टेबल वाज अलॉटेड, टीचर्स वेर अलॉटेड एंड फॉर्मल क्लासेस वेर हेल्ड एज यूजुअल, जैसा कि हम करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ। दूसरे ग्रुप को उन्होंने ना टाइम टेबल दिया, ना ही उन्होंने टीचर असाइन किया। उनसे कहा कि तुम खुद पढ़ो, अगर तुमको कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, इस तरह की कोई परेशानी होती है, तो इसके लिए ये टीचर असाइन किए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आई मीन अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। तुम उनके साथ जो है वो उनसे इंटरेक्शन करो, अपनी समस्या को उनके सामने रखो, कंफ्यूजन को। यानी गोया कि देयर विल बी नो फॉर्मल क्लास ऑफ यू, ओनली फर्स्ट ग्रुप की क्लास होगी, तुम्हारी क्लास नहीं होगी। तुमको सेल्फ स्टडी करना है एंड यू गो अहेड। और मुझे लगता है कि ये 5-6 सालों तक एक्सपेरिमेंट जो है वो चला। एंड सेकंड ग्रुप वाज फाउंड बेटर इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट ग्रुप। वो सारे के सारे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करते थे, उसमें से बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते थे, कुछ बहुत मुश्किल गोया कि जैसे नवोदय विद्यालय के या केंद्रीय विद्यालय के जो सिलेक्शन होते हैं टीचर्स के, उसको क्वालिफाई, दे परफॉर्म्ड वेरी वेल इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट ग्रुप। और इस स्टडी को जब मैंने पढ़ा, इसको मैंने बहुत बारीकी से फिर देखा, फिर वशिष्ठ सर से मैं मिला भी, उनसे बहुत सारी बातें भी हुई, तो तब से ये मेरा फेथ एक कायम हुआ कि वाकई में सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आई डोंट से कि हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है या हमारी जरूरत नहीं है, आई डोंट से दैट, डेफिनेटली दैट इज देयर, बट सेल्फ स्टडी हैज इट्स ओन एडवांटेज, हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। So the moment we are talking about extended learning opportunities, so after apprenticeship, it is the second opportunity that we provide to our students, यानी self study। तो self study के लिए मोटिवेट करना, अच्छे सोर्सेज को बताना, अच्छी बुक्स को बताना, अच्छी साइट्स को रिकमेंड करना, रिफर करना, अच्छे लिंक्स उनको प्रोवाइड करना, समथिंग लाइक दैट, वो सारा उसका टेक। Then coming to the third one, internship। And in fact, in the profession in which I'm a teacher educator, I'm a teacher trainer, definitely. So I'm quite sure internship is very important. So earlier internship was done only in medical institutions. लेकिन अब धीरे धीरे करके उसको हम लोग और दूसरे प्रोफेशन या दूसरे जो कोर्सेज हैं उनमें भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन बनाते हैं। तो विनीत सर हैं, अनुपम सर हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर टीचर एजुकेटर्स हियर। तो आप लोगों का अनुभव मैं जरा इस पे जानना चाह रहा था, आप लोग की ओपिनियन जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है, इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट? विनीत सर कॉन्क्रीट वे में मुझे बताइए कि जब स्टूडेंट हमारे पास आता है और जब हम उसको इंटर्नशिप भेज देते हैं इंटर्नशिप पर, और इंटर्नशिप के बाद आता है, तो क्या उसके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में चेंज आता है विनीत सर? जी सर, बिल्कुल चेंज आता है सर। जी जरा कंक्रीट वे में 1-2 बातें बताइए सर। हम अपना एक्सपीरियंस हम बताएं कि जब हमने बीएड हमने नहीं किया था और उसके पहले हम जब पढ़ा रहे थे, तो और उसके बाद जब हमने बीएड किया, जब उसके बाद हमने पढ़ाना शुरू किया, तो हमने उसमें देखा कि जो
हमने इंटर्नशिप पे जो हमने जा करके अपने लेसन प्लान बनाए, विद्यालय में जाके पढ़ाया, तो हमें एक चीज ये समझ में आई कि हमें कैसे कैसे स्टेप से आगे बढ़ना है, और क्लास में विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, अपनी तरफ उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उस पूरे सिस्टम से अपना जो विषय वस्तु है वो कैसे करना चाहिए। और एक चीज हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सर हमने सीखा, पहले हमें लगता था कि जो पढ़ाना का मतलब है कि हम क्वेश्चन आंसर रटा दें, पर वहां पर जाकर के हमें ये समझ में आया कि नहीं, पढ़ाने के पीछे कुछ उद्देश्य है, हर पाठ के अपने कुछ उद्देश्य हैं, और हमारा उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तर कराना नहीं है, बल्कि बच्चों का मतलब कि मतलब जो उद्देश्य थे उनको प्राप्त करना। अर्थात हमारी सोच में भी अंतर आया, हमारे पढ़ाने में भी सर अंतर आया, है ना। तो वो राइट सर, विनीत सर, थैंक यू। डिम्पल मैम, यू वांटेड टू से समथिंग? डिम्पल मैम, ओके। अनुपम सर कुछ कह रहे हैं आप? सर हाँ, बस डिम्पल मैम, मैं ये कह रही थी कि जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है जब उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि आइडियल कोई चीज़ नहीं होती है, और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जानते हैं कि कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है और उसका क्या सलूशन है, कैसे उसको हम फेस करते हैं। राइट। अनुपम सर। जी सर, मेरा भी ये कहना है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर ध्यान देने से बच्चों की स्किल के बारे में पता चलता है, और बच्चों में कहाँ पर क्या कमियां हैं, शिक्षक को सबसे पहले इस बातों को जानना होगा, तभी जाकर उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं या अपने क्लास लेकर चले जा रहे हैं, तो बच्चों का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, साथ ही शिक्षा में उनकी रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अतः बच्चों को सही रूप से जानने के लिए थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मगर उसमें आप बातचीत करके, बातचीत शैली में, क्वेश्चन प्रश्न उत्तरी शैली में यदि आप पठन पाठन करते हैं, इससे बच्चों का स्किल पता चलेगा, उनका इंटरेस्ट जगेगा। राइट सर, हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे। जी विनीत सर। जी सर, जैसे हम लोग जब बीएड में पढ़ाते थे तो राजस्थान में हमें कुछ दिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिला, तो वहां पर सर हमने देखा कि जो लेसन प्लान पढ़ाने के बाद में जब बच्चा पढ़ा लेता था पूरे अपने 20 प्लान, तो वहां पर एक होती थी ब्लॉक टीचिंग। ब्लॉक टीचिंग में जिस विद्यालय हम लोग पढ़ाते थे उस विद्यालय में बच्चे ही प्रिंसिपल, वही सब कुछ बन जाते थे, और एक वीक तक पूरे विद्यालय की व्यवस्था है वो खुद ही संभालते थे। अर्थात उन्होंने टीचिंग का एक्सपीरियंस भी लिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी था वो भी उन्होंने लिया वहां पर जाकर के सर। That's it. Thank you. So I think enough examples have been quoted by Vineet sir, by Dimple ma'am and by Anupam sir. मुझे ऐसा लगता है कि internship is very important, particularly in this profession. If you talk about engineering, if you talk about medical, if you talk about our own teacher education, क्योंकि जो कुछ भी हम देखिए real life का जो experience होता है वो that is quite different from the theoretical knowledge. तो हम जो कुछ भी हम माइक्रो टीचिंग करवाते हैं, हम सिमुलेटेड टीचिंग करवाते हैं, हम बहुत सारा सब कुछ जो है वो करवाते हैं, लेकिन ये कि रियल जो निखार बच्चों में आता है वो तभी आता है द मोमेंट दे गो टू स्कूल, क्योंकि वहां पर स्कूल में जाकर के वो सारी चीजें, जैसे कि विनीत सर ने बताया कि वो स्कूल को मैनेज कैसे करना है ये भी सीख लेते हैं, सुबह की असेंबली कैसे करवाना है ये भी वो सीखते हैं, कुछ स्कूलों में मिड डे मील बढ़ता है उसको कैसे करना है ये भी सीखते हैं, पढ़ाते भी हैं, अटेंडेंस भी लेते हैं, लीव का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, सो मेनी थिंग्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू एज ए टीचर। तो जब वो स्कूलों में जाते हैं तो रियल इंटर्नशिप से वो सीखते हैं। तो आई थिंक इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू 3 more, अगर आप देखें फॉर्मल, इनफॉर्मल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंड पर्टिकुलरली if you go through the document National Education Policy 2020, it has emphasized much on experiential learning. तो अब यहाँ पर फिर आपसे आप लोगों का ओपिनियन लेता हूँ और फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बताइए कि ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? व्हाट्स योर ओपिनियन? सर, फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो हम क्लासरूम में प्राप्त करते हैं, जहां पर प्रत्येक चीज निश्चित होती है, हमारा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षक, विद्यालय, हर चीज। इनफॉर्मल आपके हमारी जो इनफॉर्मल होती है वो हम कहीं से भी अपना मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहीं से प्राप्त कर लेते हैं। जी। और जो और एक्सपीरियंस बेस्ड में वही है कि हम अपना जो भी ज्ञान सीख रहे हैं, मतलब जो चीज है उसको हम अनुभव द्वारा प्राप्त करें। वो हमारे बहुत सारे शिक्षाविदों ने अलग अलग उसमें सभी ने इसको माना है कि अनुभव पर जो ज्ञान में प्राप्त होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उसमें हमारी सारी जो इंद्रियां होती है वो सक्रिय होती है और हम मोटिवेट होते हैं उसको सीखने के लिए, तो वो ज्ञान स्थायी रहता है सर।
ठीक 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 ठीक। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये फॉर्मल इस तरह से हो सकती है जैसे कि इन आवर और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हम लोग साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, फिलॉसफी पढ़ाते हैं, है ना सर? विनीत सर बताइए। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है भाई, आपने या मैंने, हम लोग तो फिलॉसफी के नहीं है बेसिकली, हम हमारा सब्जेक्ट तो कुछ और है, मैंने फिजिक्स के हैं, जूलॉजी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, किसी और, अब वो अपने 2 साल 3 साल जो भी पढ़ा हो उसकी बुनियाद पर हम पढ़ाते हैं, बट डेफिनेटली वी आर नॉट द स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर दैट। अब अगर कोई इन डेप्थ ज्ञान हासिल करना चाहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का या फिलॉसफी का या सोशियोलॉजी का, तो हमारे कोई मित्र हैं सोशियोलॉजी विभाग में या हमारे कोई मित्र हैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जो कि मदद कर सकते हैं स्टूडेंट की। हमने उसके पास उनको रिकमेंड कर दिया, ये कह दिया कि उनकी क्लास फला टाइम से फला टाइम होती है, तुम हमारे यहाँ से फ्री होकर के उनकी क्लास को ज्वाइन कर लो, समथिंग लाइक दैट। तो एक बियॉन्ड क्लासरूम हमने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, बट दैट इज वेरी फॉर्मल वन। व्हाई फॉर्मल वन? बिकॉज वो उस लड़के को वहां पर उनके पास जाना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर टाइम में जाना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो है लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर्मल एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इनफॉर्मल कहीं से भी कभी भी सीख सकते हैं, दिन में, रात में, लेटे हुए, बैठे हुए, सोते हुए, सो में नहीं। अब इनफॉर्मल जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और फॉर्मल जो होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है। तीसरा जो मैंने बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग? आपकी समझ से एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? सर एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, जी रघुराज सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कुछ? सर हाँ, उस दिन सर वशिष्ठ सर ने भी एक स्टोरी इस संबंध में सुनाई थी कि कुछ बच्चे गुरुकुल से ज्ञान प्राप्त करके निकलते हैं और वो अलग अलग विद्या प्राप्त करते हैं और जब जंगल में आते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ चीजें दिखाई देती हैं, मतलब किसी जानवर की हड्डियां, और वो वही चीज एक पहचान लेता है कि इसकी हड्डियां हैं, एक उस पर खाल डाल लेता है, एक जान डाल देता है। लेकिन जो व्यवहारिक बुद्धि थी कि एक व्यक्ति चढ़ गया ऊपर पेड़ पर कि नहीं ये मुझे शेर था, ये खा जाएगा, तो वही चीज है। हमें जो अनुभव से ज्ञान, हमारा जो सैद्धांतिक ज्ञान कई बार क्या होता है वो हम वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और जब हम एक्सपीरियंस में सीखते हैं तो वो ज्ञान हम वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, उसकी समस्या समझते हैं। जी जी, देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले आता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें, देखें, महसूस करें, छुएं, आई मीन समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट वन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। दूसरा लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस आर एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर कहा जाता है, एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है इंग्लिश का कि लाइफ इज द बेस्ट टीचर। तो आप इससे एग्री करते हैं? यस सर, यस सर। हाउ लाइफ इज द बेस्ट टीचर, हाउ? So everybody's life is unique. Every person is unique. So everybody has unique problems that are faced by that individual during his course of journey. So when he's in his journey towards life, he learns and he experiences some unique phenomena which he learns to handle, thereby experiencing it. Okay. Dimple ma'am? यस सर। लाइफ सर क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है मतलब किसी को भी सिखाते हैं तो नहीं सीखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब उनके लाइफ में वो चीज घटना घटित होती है तो उनका दिमाग ज्यादा खुलता है और उस चीज को वो ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं इस चीज को। I think you all agree with me. Every knowledge can't be imparted in the classroom. इस बात से तो सहमत हैं सभी लोग? जी सर। Yes. तो बहुत सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, रियल लाइफ में आते हैं, तब हम सीखते हैं। और शिक्षा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये है कि हमको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए। So far as experiential learning is concerned, it has 3 components: learning by observation, as just I have mentioned, then learning by experiences or experiments, and number 3, जैसा कि रघुराज सर ने कहा था, learning by doing। इन तीनों को अमलगमेट करें, मिक्स करें, तो that becomes experiential learning। और experiential learning also is a form of सर डिस्कनेक्ट हो गया। सर लेफ्ट हो गया।
सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया है, नहीं है। ठीक है, कनेक्ट हो जाएंगे सर, क्योंकि हाँ, वहाँ पे बारिश नेटवर्क इशू होगा। हाँ Friends listening to me? जी सर। यस जी सर। या मुझे लगा कि बीच में मैं एग्जिट हो गया था। तो वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड एक्सपीरियंशियल टाइप ऑफ लर्निंग। तो अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ये स्लाइड आपको दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so four components. Yes, sir. Four components you can see on the slide. Research है, reflection है, product है, presentation है. You start from presentation, you come to research, you reflect, and you think about product. तो presentation, your own presentation, आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का, उसमें continuously research करिए, उसमें continuously गोया कि उसके कंपोनेंट्स को देखिए, कैसे आप बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली रिफ्लेक्टिंग मींस हाउ यू कैन मेक इट बेटर और फाइनली द प्रोडक्ट। ये मेरे ख्याल से 4 कंपोनेंट्स जो है वो एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के होते हैं। अब जो बात आती है वो ये कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं इस एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में। तो इफ यू कैन सी द स्लाइड, मेनली देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स। आपको स्क्रीन दिख रही है? Sir. यस सर। जी जी जी। तो ये मैं आपको 1 मिनट का टाइम में दे रहा हूं। आप जरा सा इस स्लाइड को देखिए, इसको पढ़िए, जस्ट 1 मिनट। ओके सर। Yes, my friends, you have seen? Yes, sir. जी सर। तो कितने स्टेक होल्डर्स हैं? 3। सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन है? Student. सेकंड वन? टीचर्स counselors. The last one is community and family. राइट। अब जरा इन तीनों को गौर से देखिए। You focus on 3. So definitely, I mean, without students, nothing can be done. हमारा अपना existence, हमारा अपना अस्तित्व ही नहीं है। In fact, बिना students के, students are the core components. तो उनका नेचर जानना, उनका बैकग्राउंड जानना, उनके अंदर पोटेंशियल क्या है वो जानना, उनके एस्पिरेशंस क्या है, व्हाट दे नीड, व्हाट दे एस्पायर, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, समथिंग लाइक दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप one thing that I would like to share and I would like to take your opinion also. आपको लगता है कि आपकी जनरेशन से और ये जनरेशन जो स्टूडेंट्स की है उसमें अंतर है, उसमें फर्क है? What's your opinion? जी सर, बिल्कुल। Yes, sir. किस मामले में फर्क है? Definitely, sir.
technology, use of technology. So how They are today's students are technologically different from advanced. your generation students? They सर आज are की जनरेशन को technologically ज्ञान advanced. टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ठीक है, और दूसरा बताइए। सर आज की जनरेशन को ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन है, और जो हम लोगों की जनरेशन थी उस समय शायद हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय पर ही लगभग निर्भर थे या अपने बड़े बुजुर्गों पर निर्भर थे। तो इसलिए आज का जो विद्यार्थी है उसे नॉलेज बहुत ज्यादा है, मतलब हर चीज से नॉलेज बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो क्लासरूम पर केवल निर्भर नहीं है और तकनीकी रूप से समृद्ध है। अच्छा, और कुछ Actually, teacher, we are not advanced in technology now. सर But सोच today में भी बहुत and the फर्क है, present teacher, पहले की जनरेशन और आपकी जनरेशन की सोच में बहुत फर्क है। अभी हम जल्दी ग्रो करना चाह रहे हैं, फास्ट तौर पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तुरंत सब चीज को हासिल करना चाह रहे हैं। तो चूंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, पूरी एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो थिंकिंग भी, पहले हम ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो करते थे, अब उस तरह के एथिक्स वैल्यू को फॉलो नहीं करते हैं। हमारा टारगेट है कि हम जल्द से जल्द बहुत अचीव कर लें अपने टारगेट को, सारी दुनिया की सारी चीजें हासिल कर लें। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए हैं सर। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर। एंड इन आवर टाइम, इन आवर टाइम कंपटीशन वाज देयर, लेकिन ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था जैसा आज का है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी इतनी हाई नहीं थी मुझे लगता है अपने टाइम में, अब ये बहुत हाई है एंड उसकी वजह से वो स्टूडेंट्स पर भी बहुत प्रेशर है, एंजाइटी है। एक और चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट। We were interested in textbooks, but nowadays students are interested more in Facebook. वेरी गुड, वेरी गुड। एक और जो मेजर फर्क जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम क्वाइट श्योर यू विल एग्री विद मी, कि अब के जो जनरेशन के स्टूडेंट्स है ना, वो ज्यादा डीप लर्निंग में नहीं जाते हैं या डीप लर्निंग में उनकी रुचि नहीं है। दे मोस्टली आर सरफेस लर्नर्स, मोटी मोटी वही बातें पढ़ लें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते। बहुत कम होंगे ऐसे, आपकी क्लास में अगर 2-3 हो तो हो, अदरवाइज तो नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि मतलब दे आर मोर सरफेस लर्नर्स इन नंबर्स इन कंपैरिजन टू द डीप लर्नर्स। अच्छा, एग्रेसिव है आपकी जनरेशन जो थी वो सबमिसिव थी। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपके टीचर ने डांट दिया, पेरेंट्स ने डांट दिया, तो शायद ही आप में से किसी ने रिएक्ट किया हो। बट डू यू थिंक कि अगर आप इनको हड़का देंगे, डांट देंगे, तो दे विल नॉट रिएक्ट? व्हाट्स योर ओपिनियन, बताइए सर। यस सर, यस सर। हाँ सर, एक डिफरेंस ये है सर कि जो हमारी जनरेशन थी उसमें जो पढ़ते थे वो पढ़ने वाले हुआ करते थे ज्यादातर, लेकिन अब जो है 97% तो ना पढ़ने वाले ही पढ़ रहे हैं, 2 और 3% ही पढ़ने वाले हैं। जी जी। प्रदीप सर कुछ कह रहे थे आप? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। ओके तो लॉट ऑफ डिफरेंस आज के स्टूडेंट में। वो बहुत बेबाकी से और बहुत ही गोया कि एग्रेसिवली अपनी बातों को कहते हैं। आपके ऊपर अगर ब्लेम करना हो तो उससे भी नहीं चूकेंगे, और वैल्यूज और मोरालिटी और एथिक्स और वो सारी चीजें, अब उस पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। आई एम जस्ट कटिंग शॉर्ट माय पॉइंट। तो इट्स नेचुरल कि टुडेज जनरेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर जनरेशन, इस बात को हमें समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन आवर टाइम इट वाज सपोज दैट लर्निंग स्टॉप्स विद द स्कूल बेल। स्कूल की घंटी जब छुट्टी वाली बज गई तो अब लर्निंग का चांस बहुत कम होता था। बट टुडेज जनरेशन, जैसा कि आप लोगों में से किसी ने पॉइंट आउट किया था, कि उनके पास सीखने के बहुत सारे स्रोत हैं और वो निर्भर नहीं है स्कूल पर या कॉलेज पर या शिक्षक पर या किसी एक स्रोत पर। आई मीन देयर आर सो मेनी सोर्सेस। तो अब उनको हम एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें तो आई थिंक दे विल लाइक इट। आई मीन दे माइट लिसन टू आवर लेक्चर, दे माइट बी देयर इन आवर क्लासरूम, लेकिन वो और ज्यादा एक्साइटेड फील करेंगे अगर हम उनको एक्सटेंडेड जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, व्हाट आर देयर नीड्स, विद व्हाट रिसोर्सेज दे हैव इन प्लेस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट कौन थे बताइए, क्या देखा था आपने स्लाइड में? टीचर्स एंड काउंसलर। टीचर्स एंड काउंसलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक टीचर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कि आप किसी वेबसाइट को रिफर कर पाएंगे या किसी पुस्तक को रिफर कर पाएंगे बिना उसके बारे में जाने हुए या बिना उसको पढ़े हुए? व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं सर।
No, sir. No, sir. No, sir. Yes. So what is required? First we have to study thoroughly. अब किताबें तो हम लोगों ने पढ़ी हैं और अब और भी पुस्तकें आ रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो पढ़ने का ट्रेंड है सोसाइटी में वो खत्म हो रहा है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट द यंग जनरेशन. अब पुराने लोग भी थोड़ा सा पढ़ने में उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है. आपने सुना होगा कि बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह बंद हो गए या उन्होंने अपना ई एडिशन शुरू किया. व्हाई? बिकॉज वो पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है. नो इशू. If they are more comfortable in viewing the websites and in going to Wikipedia and going to YouTube and all those, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पहले आप उसको देखिए, वो जो कंटेंट है, ज्ञान है, उसको आप पहले देखिए. Do you think everything that is available on Google, everything that is available on YouTube is authentic? What's your opinion? No, sir. बताइए. No, sir. Not at all. हाँ. अच्छा, वो आजकल वो गूगल ट्रांसलेट वगैरह ये सारा भी सब कुछ चल रहा है ना, आप लोगों ने सुना होगा. जी सर. तो बहुत गंदा ट्रांसलेट करता है. ओके, सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक किसी यूनिवर्सिटी से मुझे एक असाइनमेंट मिला. आई एम कंफर्टेबल विद 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू. तो मुझे वो असाइनमेंट मिला था कि इंग्लिश के कुछ आर्टिकल्स थे, आई मीन ऑफ सम ग्रेट स्कॉलर्स, और उनको ट्रांसलेट करना था 2 भाषाओं में, हिंदी में और उर्दू में. तो उर्दू में ट्रांसलेशन मैंने खुद किया और हिंदी वाला ट्रांसलेशन मैंने अपने एक रिसर्च स्कॉलर को दे दिया कि भाई तुम कर लो, मैं बाद में चेक करूंगा. तो उस रिसर्च स्कॉलर ने क्या किया कि उस पूरे आर्टिकल को गूगल ट्रांसलेट में डाल दिया और बहुत जल्दी करके ले आया. तो अब जब मैं पढ़ने लगा उसको, ट्रांसलेशन को, तो ऑन वन पॉइंट आई स्टॉप. बहुत अटपटी बात लिखी थी, बहुत अजीब सी बात लिखी हुई थी. ये लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों को आपस में राजनीतिक सगाई की आवश्यकता है. गॉट माय पॉइंट माय फ्रेंड्स? सुने आप लोग? हाँ, तो बोला बहुत गंदा ट्रांसलेट करता है वो. सुनिए. तो जब ये लाइन मैंने पढ़ी तो मैं जरा रुका कि मतलब ये क्या लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान की सरकारों को आपस में राजनीतिक सगाई की आवश्यकता है. तो मैंने लड़के से कहा, तो उसने कहा कि नहीं सर मैंने सही किया. मैंने कहा नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट लाओ. अब ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लिखा हुआ था कि द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नीड पॉलिटिकल एंगेजमेंट. तो उस पॉलिटिकल एंगेजमेंट को वो गूगल ट्रांसलेशन ने बना दिया शादी वाला एंगेजमेंट, सगाई वाला. गॉट माय पॉइंट माय फ्रेंड्स? तो मेरे भाइयों बहनों, बिल्कुल आंख बंद करके गूगल बाबा पर भरोसा करना, विकिपीडिया पर भरोसा करना, यूट्यूब पे भरोसा करना, मतलब मुझे थोड़ा मुनासिब नहीं लगता है. और बच्चे को हम दोष नहीं दे सकते, आई मीन दे आर इनएक्सपीरियंस, लेकिन हम तो एक्सपीरियंस है. तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंटेंट रिफर करने से पहले, कोई भी लिंक भेजने से पहले एक बार थॉरोली आप देख लीजिए कि ये ल्यूसिड है, आसान भाषा में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो अच्छे हैं और ऑथेंटिक है. इफ यू आर सेटिस्फाइड, तब उसके बाद उस लिंक को जो है आगे बढ़ाइए और फिर वो चीजें जो है वो होंगी. तो योर रोल इन एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप भले उनको क्लासरूम में फॉर्मल टीचिंग मत दीजिए, लेकिन अगर आप उनको एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपका ज्ञान, आपकी स्किल जो है वो बहुत मैटर करती है इन द सेम वे एज अ काउंसलर. अब बताइए थर्ड कंपोनेंट कौन सा था जो आपने देखा? Family and कम्युनिटी एंड फैमिली. जी, Community and family. कम्युनिटी एंड फैमिली. कम्युनिटी एंड फैमिली. अच्छा, आपको लगता है कि कम्युनिटी एंड फैमिली का कोई रोल है इसमें लर्निंग में? डेफिनेटली. जी सर, बहुत बड़ा रोल है सर. कैसे बताइए सर? जो हमारा जो सबसे पहला जो कंपोनेंट था, जो स्टूडेंट था, वो जो हमारे जो पेरेंट्स हैं कम्युनिटी में, वो उन्होंने जब भेजा था तो जो अपेक्षाएं जुड़ी हुई उनकी जुड़ी हुई है वहां पर. अगर बच्चे का जो परिणाम आता है उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे तो वो उसके पेरेंट्स होंगे और कम्युनिटी होगी. तो इसलिए वो समय समय पर जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. इसलिए दिस इज वन थिंग. And another thing, in our community, there are so many good doctors, there are so many good scientists, there are so many people who are defense personnel, सीमा पर काम किए हैं, बॉर्डर पे काम किए हैं, या कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम किया होगा. उनके बारे में हम पुस्तकीय ज्ञान शायद
बहुत अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अगर हम उनको रिफर कर देंगे अपने स्टूडेंट्स को कि तुम उनसे जाकर के मिल लो, या आइदर वी ऑर्गेनाइज वन एक्सटेंशन लेक्चर ऑफ दीज पीपल इन आवर इंस्टीट्यूशन, तो वो आएंगे, वो जो डिलीवर करेंगे अपने अनुभव के आधार पर जो बातें बताएंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि वो उसका मुकाबला कुछ भी नहीं होगा पुस्तकीय ज्ञान के मुकाबले में। तो इन माय ओपिनियन द थर्ड स्टेक होल्डर्स इन दिस एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर कम्युनिटीज एंड फैमिलीज, प्रोवाइडेड दैट कि हम अपने उद्देश्य के हिसाब से उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनकी सेवाएं जो है बोले। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम कैसे हाई क्वालिटी ELOs जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके डिजाइन करने के हवाले से कुछ बातें इस स्लाइड में कही गई हैं। अगर आप देखें तो कैसे डिजाइन करें हम एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, हाई क्वालिटी का एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे हम डिजाइन करें, तो उसमें कुछ बातें मोटी मोटी यहाँ पर लिखी हुई है 1, 2, 3 and 4। तो फर्स्ट इज रिलेटेड विद द की फीचर्स ऑफ दैट ELO, सेकंड वन इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, थर्ड वन इज टेम्पलेट एंड फोर्थ वन इज। तो 1 मिनट का मैं टाइम आपको दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। রাস্তা সঙ্গেই না ভিতরে এই তো ওই যে দাঁড়িয়ে না 500 টাকা দিয়ে তো 5 লাখ কি হলো डॉक्टर मीनू हम माइक है आइला এটা খারাপ দুই চাও দুই पढ़ लिए माय फ्रेंड्स, তোমরা কত দেবে? হ্যাঁ বলো माय फ्रेंड्स। তারপরে जी सर। मिरल दास प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, someone's mic is open, जरा बंद कर लीजिए प्लीज। यस, तो बात ये हो रही थी कि कैसे हम हाई क्वालिटी ELOs को डिजाइन करें। तो सबसे पहले आई मीन वी हैव टू सी द की फीचर्स। अब उस की फीचर्स में क्या आता है कि इट शुड बी कम्युनिटी बेस्ड, उसमें मेंटरिंग हो, क्रेडिट हो, कॉम्पिटेंसीज एंड ऑल दोस थिंग्स। और nowadays I think you people have heard about ABC, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है माय फ्रेंड्स? जी 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 यस सर। हाँ, तो क्या है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? एक डिजिटल बैंक हो सर, जिसमें क्रेडिट बच्चों को कलेक्ट जमा हो जाते हैं। हाँ, जिस तरह से हम बैंक में, हाँ, जिस तरह से हम बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं और कहीं से भी पैसा हमारे पास आता है या हम कहीं से भी पैसा भेजते हैं, यानी डेबिट एंड क्रेडिट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दैट अकाउंट। उसी तरीके से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। यूजीसी में हर लड़के का एक अकाउंट खुल जाएगा, एंड देयर इज सम बॉय और गर्ल हु हैपेंस टू विजिट सम इंडस्ट्रियल प्लेस, और वहां से उसने बहुत बड़ी मशीनों के साथ काम करना सीखा या किसी फैक्ट्री में या कुछ सीखा, और वहां से एक सर्टिफिकेट लिया कि हाँ दिस पर्टिकुलर बॉय और गर्ल हैज स्पेंट 2 weeks or 1 week or 15 days or 1 month learning with the machines and all those। तो वो ला करके उसको दिखा दे तो he or she will get the credit। और अगर वो एक इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है, इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके इंडस्ट्री में जाता है, या इंडस्ट्री को छोड़ करके इंस्टीट्यूशन में आता है, तो बाय दैट वे दैट क्रेडिट विल बी ट्रांसफर्ड। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में एक बहुत फ्लेक्सिबल ये सिस्टम है क्रेडिट का, और काफी अच्छा भी है अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। तो आई थिंक द मोमेंट वी आर डिजाइनिंग हाई क्वालिटी
वीडियोस, तो हम उसमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कि उसमें रिसर्च, रिफ्लेक्शन, प्रोडक्ट क्रिएशन और प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग हो, जैसा कि शुरू में बात हुई थी। एक टेम्पलेट बनाना और उस टेम्पलेट में सारे चीजों को अच्छे से रखना, ध्यान में रखना, पर्पस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्रेडिट्स कितनी है, ऑल दोस थिंग्स। इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू डिजाइन हाई क्वालिटी वीडियोस। यानी एक्सीलेंट लर्निंग को करेंगे तो हम अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। अब शुरू में बात आई थी कि एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो, और उस पे आप लोगों ने अपनी राय भी दी थी कि हाँ होनी चाहिए। तो व्हाई इट शुड बी, मुझे लगता है कि बहुत ही कंक्रीट वे में ये 3-4 पॉइंट्स के थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर करियर एडवांसमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल कनेक्शन। अब आप तमाम लोग, यू ऑल आर टीचर्स, आई कैन सी आई थिंक 169 or like that people have joined. So why you people have joined this particular program? What's the purpose? सर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और learn something different. Personal growth, career growth. Personal growth, career advancement. I mean, all these purposes are there. And simple reason is that कि जब आपने PhD किया था, जब आप आए थे टीचिंग प्रोफेशन में, तो तब से अब में काफी चेंजेस हुआ है। तो द मोमेंट वी ज्वाइन सच टाइप ऑफ प्रोग्राम, तो वो हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, कैपेसिटी को बढ़ाता है, स्किल्स को बढ़ाता है। तो दैट्स व्हाई आई मीन फॉर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज करियर एडवांसमेंट एक्सटेंडेड लर्निंग आर इम्पोर्टेंट। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, एकेडमिक काम करते हैं, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो डेफिनेटली हमको उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड देन सोशल कनेक्शंस, डेफिनेटली मोर एंड मोर वी विल बी ब्रिंगिंग पीपल एंड कम्युनिटी टुगेदर, तो उससे जाहिर सी बात है कि सोशल कनेक्शन बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और एक जो है वो interlinking, intermixing, intermingling, I mean, all those things will be there. So that's why extended learning opportunity is important. इसके कुछ benefits हैं, आप देख लीजिए। कुछ बातें पहले से हो चुकी हैं कि it will add to your knowledge, this is one thing. It will improve the skills that you have, definitely, this is the second thing. Enhance career prospects, क्योंकि अब promotion के लिए and for everything you have to have some certificate, you have to show some certificate, तो उसके लिए जो है वो जरूरी है। और पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए भी, आई मीन मोर यू विल लर्न, मोर यू विल फील सेटिस्फाइड, तो बाय दैट वे दिस लर्निंग एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर। अब क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के? सो मेनी आर देयर। उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने रख रहा हूं, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी दैट दीज माइट बी गुड रिसोर्सेज फॉर अस, गुड प्लेटफॉर्म्स फॉर अस। अब सबसे पहला the most important one, I have put it at number 1. क्या है आप देख रहे हैं? सर जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हाँ, आपको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए? Yes sir. जी सर, प्रोजेक्ट टाइम में सर बहुत जरूरी है। Okay, I'm changing my question. अब से 6 साल पहले क्या आपने ये सोचा था कि आप कलकत्ता में हैं या आसनसोल में हैं या सिलचर में हैं या हाथरस में हैं और वहां से बैठे बैठे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे? 6 साल पहले आपने सोचा था? नहीं सर। नो सर। Today it is possible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. How it is possible? कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ICT टेक्नोलॉजी से। Of course. And there are so many platforms. Google Meet is one, or Cisco, Webex. I mean, that might be other, Zoom. So many platforms. और day by day हम इसमें और refinement आ रहा है। Initially even I was not comfortable with this. जब मेरा लेक्चर होता था ऑनलाइन तो I mean I was not comfortable. मुझे लगता था पता नहीं लोग मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। I mean there were so many fears you can say. लेकिन धीरे धीरे करके अब we
we are habitual. अब तो बड़े बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, even in some universities some selection committees are also held on online platforms. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है अब आज के दौर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गए हैं, और मुझे लगता है कि दे हैव लॉट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. अब उसमें वेबसाइट्स हैं, पर्टिकुलरली विकिपीडिया या इस तरह के, और या सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे जो है वेबसाइट्स है. तो अब उसमें से आप किस हद तक यूटिलाइज कर पाते हैं, और मूक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो उसमें से जितना हम अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए करें. सो एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वी हैव स्टार्टेड सो मेनी MOOC courses on स्वयं प्लेटफॉर्म, and surprisingly we are getting huge number of students. कुछ कोर्सेज में तो हजार, एक हजार, 1,500, 1,200, 1,300, 900, 800. I mean such type of huge enrollment is there in some courses. कुछ कोर्सेज में कम है, कुछ में ज्यादा. तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन जो है वो इसको कंफर्टेबल महसूस कर रही है लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. देन कम्स कम्युनिटी कॉलेज. कम्युनिटी कॉलेजेस वो कॉलेज होते हैं जहां पर कि किसी भी वक्त में लोग पहुंच सकें आसानी के साथ. आई मीन नॉट जस्ट 10 to 4 और नॉट जस्ट 8 to 2, यानी उससे पहले या उसके बाद में, या इवन संडेज को या हॉलीडेज को ओपन रहे जहां पर लोग आ सके और सीख सकें, समथिंग लाइक दैट. तो दिस माइट बी सेकंड. दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री, लेकिन बाहर के मुल्कों में कम्युनिटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट जो बहुत पॉपुलर है. यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली थ्रू नॉन फॉर्मल मोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं. लाइब्रेरीज ऑफ कोर्स, not only in terms of books के अलावा भी लाइब्रेरीज का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है. सो आवर लाइब्रेरी, मौलाना आजाद लाइब्रेरी एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेस कोर्सेज कि हम कैसे ज्ञान को एक्सेस करें, प्लेगरिज्म को कैसे चेक करें. सो मेनी प्रोग्राम्स दे फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज एंड सो मेनी पीपल ज्वाइन, और फिर उससे वो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं. तो आई थिंक लाइब्रेरीज माइट बी द फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी. अब हम इसको डिजाइन कैसे करेंगे, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स को अपने डिफाइन कीजिए, करिकुलम को डेवलप कीजिए, चूज डिलीवरी मेथड्स, असेस एंड इवैल्यूएट. अब एक एक करके इन चारों पर बात कर लेते हैं. आई थिंक आफ्टर दिस वन मोर स्लाइड विल बी देयर एंड फाइनली इट विल बी ओवर. सो आई थिंक आई विल बी कंफर्टेबली फिनिश बाय 10:50. सो आप एक्सटर्नल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? I mean your objective is just to impart the knowledge, your objective is just to inculcate the skills, or your objective is to link it with the employment. क्या है पर्पस? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स के और कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोग्राम्स ऑनलाइन बहुत सारे चलते रहते हैं. Have you heard about it? सुना है? जी सर. हाँ, तो उसका पर्पस क्या होता है? बताइए, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट? कम्युनिकेशन स्किल में नई चीजों से वाकिफ होना, टेक्नोलॉजी में या फिर टीचिंग में. इसके अलावा समटाइम्स देयर पर्पस इज फ्रॉम द जॉब काइंड ऑफ अपग्रेड आवरसेल्फ इन ए इनोवेटिव फील्ड सर. हाँ, तो देखिए, अगर आपका पर्पस जो है वो सिर्फ नॉलेज को बढ़ाना है तो डेफिनेटली करिकुलम उस तरह का होगा. लेकिन अगर आपका पर्पस है जॉब से जोड़ना उसको, तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ करिकुलम. और फिर डिलीवरी मेथड किस तरीके के होंगे? आई मीन it will be workshop, it will be blended approach, it will be simply lecture, it will be case study, it will be assignment based, it will be project and model based. क्या होगा, कैसे होगा? I mean all those things. So it depends on your objective. जैसा आपका objective होगा, accordingly you will have the curriculum and you will have the delivery methods. And finally, how you are going to assess and evaluate? I mean simply you will have MCQs, or you will have some you will instruct the students to write a dissertation. उसकी बुनियाद पर evaluation करेंगे, या बड़े वाले क्वेश्चंस जो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसकी बुनियाद पर evaluation करेंगे. I mean it's up to you. तो all these four are related with each other. So first you define your objective, you develop your curriculum, you choose your delivery methods, and finally assess and evaluate. Coming to the next slide, कैसे इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है? तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कीजिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, what you are required to do, what at what time you are required to do, how you are required to do, I mean everything detail. उनके साथ एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट उनको दीजिए. टेक्नोलॉजी का जहां पर इस्तेमाल हो सके वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए.
कोलैबोरेशन और पीयर टू पीयर लर्निंग को इंकरेज कीजिए और कंटिन्यूअस फीडबैक लेते रहिए कि whether they are satisfied or not, because everything is being done for them. तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए कारामत नहीं है, या उनको लगता है कि हमारे ये काम नहीं आ रहा है, हमारे काम का नहीं है, तो आई थिंक नो पर्पस विल बी सर्व. तो कंटिन्यूअस जो है वो फीडबैक लेना इन माय ओपिनियन इसलिए. तो ये इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो उसमें आई मीन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, सिंपली बाय कंडक्टिंग इवेल्युएशन, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, आप पता लगा सकते हैं कि आई मीन वेदर दे हैव गॉट द नॉलेज और नॉट, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट और नॉट. करियर एडवांसमेंट में किस तरीके से कोई पर्टिकुलर कोर्स हेल्प कर रहा है, पार्टिसिपेंट का सेटिस्फैक्शन क्या है, और हाउ इट इज हेल्पिंग इन द पर्सनल ग्रोथ. तो आई थिंक थ्रू दीज वेज यू कैन evaluate whether your learning opportunities are better or not. उनका learning outcome क्या हो रहा है, I mean it is satisfactory or not. So the last slide of my presentation, disadvantages of extended learning opportunities. So till now I have presented before you people what are the learning opportunities, what are the characteristics, what are the benefits, what are the sources. अब लास्ट में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो ये 3 मेजर डिसएडवांटेज ये मैंने स्क्रीन पे रखा है. तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज रीड दिस स्लाइड एंड देन वी विल डिस्कस एंड फाइनली आई विल से गुड बाय टू यू. सो 1 मिनट में इसको पढ़ लीजिए. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. Distraction. पढ़ लिए? जी सर. जी सर. Yes, sir. Right. So these are the major 3 disadvantages. Besides the characteristics and besides the benefits that I have talked, there are a lot, but definitely it is not free from disadvantages. अब पहला जो disadvantage है वो distraction का. So what do you understand by distraction? सर कभी कभी हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं गूगल में या कहीं पर जाकर, तो जिस चीज को हम सर्च करते हैं कभी कभी करते करते उस मेन चीज को छोड़ के कहीं और पहुंच जाते हैं. पता चलता टाइम मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है और चीज भी बढ़िया से कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होती है. एंगेजमेंट पे पहुंच जाते हैं. You want to read? सर लक्ष्य से भ्रमित होना. देखिए, there is one formal classroom. Suppose डाइवर्जन का शिकार होना सर. जी अमृतेश सर बोलिए सर. सर डाइवर्जन का शिकार होना. Got it. Please note yourself. देखिए, this one formal classroom. आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो what happens? Suppose its time is from 10 to 4. तो आप फ्रॉम 9 यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम योर होम. बच्चे भी आते हैं, 10 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, आप एक लेक्चर डिलीवर करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, बच्चे भी इसी तरीके से. तो गोया कि जब टीचर के कंट्रोल में चीजें होती हैं तो थिंग्स आर क्वाइट बेटर. उसमें डिस्ट्रैक्शन के चांस कम होते हैं. क्यों? क्योंकि टीचर विल कम एट 10 इन द क्लासरूम इन लेक्चर थिएटर 1 ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. ये बिल्कुल पक्का है, ये लिखा हुआ है, टाइम टेबल में प्रेस्क्राइब है. सो टीचर विल कम तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल आल्सो कम. तो ये जो फॉर्मल टीचिंग होती है इसमें डिस्ट्रैक्शन का चांस जो है वो दैट इज लीस्ट. लेकिन जो चीज इनफॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, या जिसके बारे में ये अंदाज हो कि आज मैं नहीं गया
तो भी काम चल सकता है, कल भी सीख सकता हूँ, परसों भी सीख सकता हूँ, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, इफ नॉट दिस सोर्स दैट सोर्स। तो जहां पर बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं तो वहां पर नेचुरल है कि डिस्ट्रैक्शन का जो है वो चांस होता है, एंड इट इज बीइंग रिपोर्टेड। पर्टिकुलरली इफ यू सी दीज मूव कोर्सेज एंड स्वयं कोर्सेज, तो 2019 तक भारत में ये बहुत पॉपुलर नहीं थे, इनमें इनरोलमेंट वगैरह जो था वो बहुत कम था, बट particularly after corona period इसमें बहुत बूम आया है, और there are so many institutions who are running online courses, और हर यूनिवर्सिटी अपने तौर पर कर रही है, लेकिन हर कोई ये बात कहता है कि इसमें कि एक जो फॉर्मल जो हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसके मुकाबले में मूक के कोर्सेज या स्वयं के कोर्सेज में डिस्ट्रैक्शन का चांस जो बहुत ज्यादा रहता है, ड्रॉप आउट का बहुत रहता है, लोग इनरोलमेंट कर लेते हैं और आते नहीं है या फिर छोड़ देते हैं, ऑल दीज थिंग्स आते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और डिस्ट्रैक्शन को, इस चैलेंज को हम कैसे निपट सकते हैं कि जब हम बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम बनाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, प्रेजेंस को इंश्योर करें। इन दिस प्रोग्राम आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर सिंस 9, और 9 के बाद से फ्रीक्वेंटली मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि यू रीड माय स्लाइड, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं या आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो आपको लगता है कि आप इंगेज हैं या आप मुझसे जुड़े हुए हैं? व्हाट्स योर ओपिनियन? यस सर, इंगेजिंग है ना ये? यस सर, हम इंगेज हैं लेक्चर के साथ, और आप? जी सर। यस यस यस। तो कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि सो दैट आई मीन वी कैन इंश्योर कि स्टूडेंट्स आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग। तो अगर हम बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन करेंगे, अच्छे से डिलीवर करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय करेंगे, फीडबैक वगैरह का प्रोसेस अच्छा करेंगे, इवैल्यूएशन का प्रोसेस अच्छा करेंगे, एंड सम अदर वेज, तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हम जो है वो कम कर पाएंगे। सो दिस इज वन थिंग, दिस वन डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज आप क्या देखे थे स्क्रीन पे? लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। लिमिटेड सोशल। हाँ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट आई कैन से वन थिंग श्योर, कोरोना पीरियड में अगर ये महीने 2 महीने लॉकडाउन और बढ़ जाता तो मैं बिल्कुल बीमार हो जाता, बिल्कुल पक्की बात है। आप लोग की क्या राय है इस बारे में? आप लोग लोनली फील कर रहे थे, होपलेस फील कर रहे थे घर में बैठे बैठे? देखिए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो सिंपली फेसबुक पे एक्टिव रहने से, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहने से वो हमारी जो अंदर की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती है, इमोशनल नीड हमारी पूरी नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल वी इंटरैक्ट विद द ह्यूमन बीइंग। और ये इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या मोस्ट ऑफ दीज एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जिनकी मैंने बात की है, उनकी कमियों में से एक कमी बहुत बड़ी ये है कि दे प्रोवाइड लीस्ट इंटरैक्शन विद द पीपल, तो एक बहुत बड़ी कमी है। और लास्ट में टेक्निकल चैलेंजेस, आई मीन the moment I joined at 9 this session, तो उससे अब तक मैं शायद मेरे ख्याल से 2 बार मैं एग्जिट हो चुका हूँ, है ना? 2 बार एग्जिट हुआ हूँ ना, once in the beginning और एक बार एग्जिट में। So I have 2 connections with me. My university is a central university. I mean, lot of resources we have been blessed with. सारी सब कुछ है। इसके बावजूद ये जो टेक्निकल डिच है वो आ जाती है रास्ते में, ये प्रॉब्लम करती है। तो टेक्निकल इश्यूज बहुत गंभीर होते हैं, और व्हाट टू टॉक ऑफ रिमोट एरियाज, जहां पर कि हमारे देश में अभी तक कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि वी आर रिलाइंग ऑन 2G कनेक्शन ओनली, व्हाट टू टॉक ऑफ 3G 4G एंड 5G, 2G पे ही चल रहा है, और बहुत सारे इसमें जो है इश्यूज है। तो टेक्निकल चैलेंजेस जो है इस रास्ते में बहुत सारे हैं, बट फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स अब धीरे धीरे करके हम इस रास्ते पर आगे बढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में थिंग्स विल बी क्वाइट इम्प्रूव्ड, और ये जो चैलेंजेस, टेक्निकल चैलेंजेस हैं, शायद ये जो है वो सॉल्व हो। तो इन ए नटशेल आई थिंक providing extended learning opportunities to our students is a very good idea, और ये इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है उनके पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, उनके करियर एडवांसमेंट के हवाले से, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, एंड सो फार एज टीचर्स आर कंसर्न, तो सारी चीजें क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती हैं, जाहिर सी बात है कि सर्टेन काइंड ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज वी शुड एक्सप्लोर। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, ऑफ कोर्स इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन इफेक्टिव वे। और ये जो चैलेंजेस हैं जिनकी मैंने बात की, तो शायद अगर इन चैलेंजेस पर हम थोड़ा सा और फोकस करें तो ये एक अच्छा आइडिया जो है वो हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सिंस लास्ट आई थिंक
80 minutes continuously I am speaking. तो 10:20 मेरी घड़ी में हो रहा है. Still we have 10 minutes. Now I am stopping my presentation at this period of time and I am opening the house for the question and answer. तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आप कोई चीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई एम वेटिंग. सो इट्स ओवर टू यू माय फ्रेंड. सर जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे जी, जैसे फेसबुक है सर और इंस्टाग्राम वगैरह है, तो उस पर हम बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं सर जी. परंतु जिनको हम जानते भी हैं तो वो हमारे सामने आ जाते हैं, फेस टू फेस हो जाते हैं, तो हम उनसे हमारी दुआ सलाम भी नहीं हो पाती उनसे. मतलब वो जब सामने मिलते हैं तो पहचानते भी नहीं है. मतलब ऐसा सोशल मीडिया पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे, मतलब 10 तरीके से चलते रहते हैं. परंतु ये सर मतलब एक डिसएडवांटेज है इनसे बहुत बड़ा. यस 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 सर एक चीज आपने डिस्कशन के दौरान कहा कि आज के तारीख में सरफेस लर्निंग ज्यादा है. तो सर अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी तो किसी भी चीज पर, कोई सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर आज के समय में हम लोग डिफरेंट वेज ऑफ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे, इन ए डीपर वे. तो सर ये कैसे आप जस्टिफाई करें कि आज के समय में सर सरफेस लर्निंग ज्यादा हो रही, डीप लर्निंग नहीं हो रही? क्या ये सर ये फिलोसॉफिकल कनोटेशन आपका है या फिर सर कैसे है? दिस इज माय फिलोसॉफिकल कनोटेशन. देखिए, रिसर्च में आने वाले कितने सीरियस बच्चे आते हैं आप बताइए? Research is very important. Deep learning is very important. Creativity is very important. लेकिन ये चीजें आप धीरे धीरे करके इसमें इंटरेस्ट लोग लूज कर रहे हैं. ज्यादातर बस वही कि ऐसी डिग्री लें, ऐसे कोर्स में एडमिशन लें, या इतना पढ़ें जिसको पढ़ करके एग्जाम पास कर लें, या जिसको पढ़ करके हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लें, या समथिंग लाइक दैट. तो ये एक चीज गंभीर है. देखिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो डीप लर्नर्स. तो ये चीज महसूस कर रहा हूं. आई डोंट नो व्हेदर आई मीन आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, लेकिन ये मेरे बहुत शिद्दत से मैं ये पिछले कुछ सालों से महसूस कर रहा हूँ कि सरफेस लर्निंग जो है वो ज्यादा बढ़ रही है बनस्पति में. भानु सर, अरे कहाँ चले गए? पूछ के भानु सर. सर है एग्जिट हो गए. और किसी को कुछ कहना है? टेक्निकल इशू. निहाल साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मुझे एक चीज कहना है. साजिद साहब एक चीज कहनी है मुझे. ये देखा जा रहा है, किसी को और कुछ कहना है या कोई सवाल है? हाँ, मुझे कहना है एक चीज. स्टूडेंट है. हेलो स्टूडेंट सर आपकी माइक म्यूट है. जी प्रदीप सर. निहाल जी जी जी, आई एम लिसनिंग प्लीज. निहाल सर की माइक म्यूट. प्रदीप सर, यू कंटिन्यू प्लीज. प्रदीप सर कंटिन्यू. यस सर. हाँ 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 सर, मैं तो निहाल सर को कह रहा था कि माइक म्यूट है सर. नहीं, निहाल सर का. हाँ, निहाल सर का म्यूट है. निहाल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर. मेरी प्रॉब्लम सर स्टूडेंट है. जी जी, प्रजापति सर बोलिए. पहले आप बोलिए. प्रजापति सर, फिर प्रदीप सर बोले, फिर निहाल सर बोले. प्लीज प्रजापति सर बोलिए. सर आज के समय में स्टूडेंट की बड़ी समस्या ये है कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं चाह रहे हैं सर. जबकि 90 सेंचुरी में वही मैं कह रहा था, बोल दिया जाता था. आज के समय में यूट्यूब सीरीज या सतही जो सरफेस नॉलेज है उस पर ज्यादा जोर देता है. तो जी बेसिकली एग्जाम को फोकस करके नॉलेज गेन तो कर ही नहीं रहा सर. नॉलेज तो मैंने यही बात कही. यस, ओके ओके सर. वेरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जी. प्रदीप सर, जी जी जी, ब्रजेश सर बोलिए.
सर एक रामचरितमानस में लिखे गया है कि गुरु बिन भवनी तरई न कोई जे बिरंज शंकर सम होई। तो बिना सक्षम गुरु के या बिना एक्सपर्ट के हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे नहीं कर पाते हैं सर। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी ने तो हमको सुविधा उपलब्ध करा दिया है, लेकिन हमारा ज्ञान सतही होके रह गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा था। इनफैक्ट सरफेस लर्निंग के हवाले से ये सारी बातें कह रहा था, तो प्रजापति सर ने और विजय सर ने मेरी बात को सप्लीमेंट किया। ओके प्रदीप सर, आप कुछ कह रहे हैं? सर प्रदीप सर। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, एक्चुअली मैं सर कह रहा था कि हमारे एक जूलॉजी सर थे जो हमको पढ़ाया करते थे ड्यूरिंग बीएससी सर। वो भी बीच बीच में हम फॉर्मेटिव रूप में पढ़ते थे सर। और सर जैसे आप भी बीच में एक दो बार मतलब गए हैं, तो जैसे तो इसका मतलब आप नेटवर्क प्रॉब्लम थी और सर कुछ आप मतलब ऐसे गए थे। ओके ओके ओके, निहाल सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाहता था कि अभी आपने जैसा जिक्र किया कि बच्चे डीप स्टडी जो है वो कम होते जा रहे हैं, बच्चे सरसरी तौर पर पढ़ते हैं। तो जो NEP 2020 के जो फॉर्मेट डिजाइन किए गए हैं, हर सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो क्या ये इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा कि हम एक विषय अभी था कि ऑनर्स कर रहे हैं, आप PG एक सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उसके बाद PhD कर रहे थे, स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता था, डीप नॉलेज जो होती थी आदमी गहराई में जाता था। इस पर आपका सर क्या ख्याल है कि NEP 2020? NEP का जो कंटेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में कि देखिए पर्सनालिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक I टाइप पर्सनालिटी, इंग्लिश का अल्फाबेट I, और एक T, कैपिटल लेटर T। तो I शोज डेप्थ, और ये जो डेप्थ है, स्पेशलाइजेशन है या नैरो स्पेशलाइजेशन है, जो पिछली सदी में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी यहाँ तक कि एक फिजिक्स का टीचर वो ये कह देता था कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एरिया है, मैं नहीं बता पाऊंगा, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, मैं नहीं बता पाऊंगा। इस कदर नैरो स्पेशलाइजेशन था। तो उसको NEP 2020 ने ये कहा कि आप जो है यू फोकस ऑन T टाइप पर्सनालिटी, इसमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबका हो। तो दैट हैज डिफरेंट कंटेक्स्ट। और ये जो चूंकि 21st सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें सिंपली स्पेशलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। स्पेशलाइजेशन हो दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन स्पेशलाइजेशन के अलावा आपके पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, और बहुत सारी स्किल्स है। तो वो कंटेक्स्ट दूसरा है। जो मैं बात सरफेस लर्निंग और डीप लर्निंग की कह रहा था कि बाय एंड लार्ज स्टूडेंट्स आर लूजिंग इंटरेस्ट, यानी उनका जो मकसद है वो सिंपली एग्जाम को पास करना, या सिर्फ उतना ही पढ़ना जो सिलेबस में लिखा हुआ है, या सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करना जो टीचर ने क्लासरूम में बताया है। फर्दर इसके लिए वो मोटिवेट नहीं होते हैं। तो मैं इस हवाले से मैंने ये बात जो है गॉट माय पॉइंट। निहाल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया जी सर, शुक्रिया सर। यस सर, यस सर जी सर। और किसी को कुछ कहना है सर आज की सब जी? राम सर बोलिए प्लीज। सर व्हाट इज द रीजन फॉर राम दिस? सर आप बोलिए प्लीज। सर व्हाट इज, हाँ सर, व्हाट इज रीजन फॉर दिस? द स्टूडेंट आर सरफेस लर्निंग, किसके लिए? फॉर इंड्यूस सरफेस लर्निंग। बहुत सारे रीजंस है। कुछ उनके तौर पर है, उनके एंड पर है कि कैजुअल एटीट्यूड है, गंभीरता नहीं है पढ़ाई के लिए, जो कुछ भी है। कुछ कभी हम लोगों में भी होती है। अगर हम उनको अच्छे से मोटिवेट करें, अच्छा लेक्चर डिलीवर करें, अच्छे सोर्सेस को बताएं, क्यूरियोसिटी प्रोवोक करें, तो आई थिंक दे विल लर्न। तो कई सारे हैं कारण इसके। इनफैक्ट कोई एक पर्टिकुलर जो है रीजन इसके लिए नहीं है। तो कलेक्टिवली इफ विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिवली इफ विल डू, तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। ठीक है राम सर, गॉट इट? ओके, थैंक यू सर। Okay, so I think it is 10:30. So thank you very much for listening to me, for being with me. आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ बहुत